Hello students, welcome to Eduate. In this video, we will have a discussion about sequence and series. This is chapter 9. So first of all, we will discuss about the sequences. So what is sequence? Sequence means a set of number arranged according to some definite law, that is called sequence. For example, sequence of even natural number. If we consider sequence of even natural number, sequence of even natural numbers. So this sequence is, even natural numbers are 2, 4, 6, 8 and so on. So see this 2, this is this 2 is known as first term represented by A1. Actually all these numbers, different numbers are known as term. So this is first term and this is second term, this third term and so on. So here A1 first term is 2, A2 is 4 and so on. If we consider A22, it will be 44. So this 2 is 2 into 1, 4 is 2 into 2. Similarly, this A22, it is 2 into 22. So A1, this 1 is first term. Subscript 1 is for the first term. Position of the term we can say. So it is 2 into 1. So 1 is here, here is 1, 2 is here, here is 2. 2 into 2 is. Similarly, in this way, we can say the nth term. An is the nth term, or it is also known as general term. So this nth term, it will be equal to, so as per this, because here is 1, here is 1, 2, this 2, 22, here is 2. So every time there is 2, 2 multiplied by this 1, 2 multiplied by 2 and so on. So this will be equal to, an will be equal to 2n. Okay, that means 2 multiplied by n. So we can find an, or we can find any term. We can find 100 term, it will be 2 into 100. So this is sequence, and a sequence containing finite number of terms is called finite sequence, and the terms are infinite, or if the sequence is not finite, so a sequence is called infinite if it is not a finite sequence. For example, finite sequence के लिए example है finite sequence का example हम दे सकते हैं. Amount of money deposited in a bank from period is given 2000 to 2019. So in this 20 years, suppose a person deposited deposit amount in 2000, he deposit 1.5 lakhs, amount is in lakhs. So in 2001 he deposit 1.7, and further he deposit 1.8, then 1.9, then 1.2, then and so on. So for the period 20 years. So we say this series will be, of course this will be series, and this will be finite sequence. This will be sequence and this will be finite sequence, because the number of terms are finite. So another example for this bars, this sequence of even natural number. So this example is of infinite sequence. So for infinite sequence, we can take another example, sequence of odd natural number. So sequence of odd natural numbers. So sequence of odd natural numbers, this is the example of infinite sequence. So it will be 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Now
we will discuss about the series. So let A1, A2, A3, these these are the terms A1, A2, A3 and so on, AN. These are the terms and these form the sequence. So A1, comma A2, comma A3 and so on up to AN. So this is sequence. So it is sequence and the expression. So if we express this sequence in this expression, so this expression a1 plus a2 plus a3 plus and so on plus an and so on. So this expression is called series associated with the given sequence. So this is the this expression is series associated with this sequence is a1 a2 a3 and so on up to an. So the series may be finite or it may be infinite according as the given sequence is finite or infinite. इनफाइनाइट देखिएगा फाइनाइट सीक्वेंस के लिए जो सीरीज होगी वो उसको फाइनाइट सीरीज कहेंगे और इनफाइनाइट सीक्वेंस से जो सीरीज बनेगी उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे. सो नाउ द सीरीज are often represented in compact form. Compact form is sigma notation. This sigma is actually summation. It is indicating summation involved. So इस सीरीज को देखिएगा the series a1 plus a2 plus a3 plus and so on up to an. So इसको हम abbreviate कर सकते हैं as summation k is equal to 1 to n ak. So इसका मतलब वही होगा देखिएगा इसका मतलब ये होगा k इक्वल टू 1 से n समेशन मींस प्लस 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 और यहाँ पर टर्म्स क्या आएंगे k इक्वल टू 1 से n यानी पहला k 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, दूसरा a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा एंड सो ऑन. k इक्वल टू 1 से n तो लास्ट क्या आएगा an आएगा. सो इसका मीनिंग यही है एब्रीवेशन मतलब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है. दिस इज नोन एज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस सीरीज. नाउ व्हेन सीरीज इज यूज्ड इसमें जो हमने ये एडिशन जनरली हम क्या कहते हैं अलजेब्रा में कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो इसको लिख देते हैं 3 2 5 5 10 14. सो इसका मीनिंग ये नहीं है यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये एडिशन सिंपल एडिशन नहीं है. सो यहाँ पर देखिएगा अगर इसको हम सीरीज कहें तो इट विल बी सीरीज, लेकिन अगर हमने एडिशन करना है डिफरेंट टर्म्स का उसको हम कहेंगे सम ऑफ सीरीज. सो व्हेन सीरीज इज यूज्ड इट refers to the indicated sum not to the sum itself. For example 1 3 5 7 is a finite series with 4 terms. So this is finite series with 4 terms. When we use the phrase sum of series means addition of this series. So we will mean the number of results from adding the terms. The sum of series in this case will be 16. Now we will have some example. We will solve these examples. Example 1, write the first 3 terms in each of the following sequences defined by the following. So an दिया हुआ है 2n plus 1. We have to find out first 3 terms. So you know an is 2n plus 1. So we will have we will put n is equal to in this we will put n is equal to 1 2 and 3. So क्योंकि we have to find out first 3 term means we have to find out a1 a2 and a3. So a1 will be equal to n की जगह हमने क्या रखना है 1 रखना है. So 2 into 1 plus 5 so it will be 7. Similarly a2 will be 2 into 2 plus 5 it will be equal to 9. So a3 will be equal to 2 into 3 plus 5 it will be equal to 11. ओके सिमिलरली सेकंड पार्ट हम कर सकते हैं. सेकंड पार्ट में हम क्या दिया हुआ है an is n minus 3 by 4. So put n is equal to 1 2 3. So a1 will be equal to 1 minus 3 by 4. It is minus 2 by 4 means minus 1 by 2. a2 will be put n is equal to 2 2 minus 3 by 4. So it will be minus 1 by 4. a3 will be 3 minus 3 by 4. So it will be 0 by 4 and 0 by 4 is equal to 0.
So a1 will be minus 1 by 2. Okay, a2 will be minus 1 by 4 and a3 will be 0. And first part a1 will be 7 and a2 will be 9 and a3 will be 11. So first three term in the part 1 will be first three terms. First three terms will be 7, 9, 11. So in second part, first three terms are minus 1 by 2, minus 1 by 4, 0. एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाई ए एन. देखिएगा ए एन इज गिवन. ए एन जनरली हम क्या कहते हैं इसको, ए एन को जनरल टर्म कहते हैं. ए एन इज नोन एज जनरल टर्म. जनरल टर्म मीन्स from an we can find out any term and by putting the n value. So यहाँ पर we have to find out a20 actually. So a20 हमने find करना है. Means we will substitute n is equal to 20 in this an. So a20 will be put n is equal to 20 here 20. So we will get 20 minus 1, 2 minus 20, 3 plus 20. So we will simplify it to get minus 7866. Example 3, let the sequence an is defined as follows. An is equal to 1. An is defined. Okay. Now an is defined. A1 is actually A1 is given. A1 is 1. And further for different value. Yani n, for n is equal to 1. So it is defined separately. For n greater than 1. Or we can say for n is equal to 2 and further values means n is equal to 2, 3, 4, 5 and so on. In सब के लिए this an is defined. An is equal to an minus 1 plus 2. So this an minus 1 is the previous term. We can say if we know a2, so its previous term will be a1. We know a3, its previous term will be a2. So this an is equal to an minus 1 plus 2. So this general term is related to its previous term for n is equal to 2 or greater than 2. So find first 5 terms and write corresponding series. So first 5 terms means a1, a2, a3, a4 and a5. So a1 is given already. So a2 from this expression, so a2 will be equal to a1, you know, put 2 here. So 2 minus 1 is 1. So it will be a1 plus 2. So a2 will be a1 plus 2. Put the value of a1. So it is 1 plus 2. So ये 3 आ जाता है. Similarly, we can get the value of a3. That is a2 plus 2. It is 5. a4 will be a3 plus 2 as per this equation. So it is 5 plus 2. a3 हमने पहले निकाला हुआ है. Similarly, a5 will be a4 plus 2. So a4 की वैल्यू रख देते हैं. ये a4 की वैल्यू 7 plus and 2, it is 9. So a5 is 9. Hence the first 5 terms of sequence are 1, 3, 5, 7 and 9. अब ये sequence हमने लिखा हुआ है. This is sequence. 5 terms के लिए 5 terms का sequence है ये. इसके लिए series क्या लिखेंगे? इन्हीं ये जो different terms हैं इनके बीच में हम plus sign लगा के लिखेंगे तो ये series कहलाई जाएगी. तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus and so on. This will be series. Now we will discuss about the arithmetic progression. So a sequence a1, a2, a3, an, this is called arithmetic sequence or arithmetic progression. If an plus 1 is an plus d and this n belongs to natural number where a1 is called first term and the constant term d is called common difference of the AP. So देखिएगा ऐसी series जिसमें difference of any term from the previous term is constant. इसका मतलब क्या है कि an plus 1 is equal to an plus d. This means an plus 1 minus an is equal to d. It means difference of any term from the previous term. So this is present yani current term and this is the previous term. So if this difference is constant,
So we say that series will be AP. For example, A1, A2, A3, AN. इसमें if A2 minus A1 is equal to D, A3 minus A2 is equal to D, A4 minus A3 is equal to D. Similarly, AN plus 1 minus AN is equal to D. So if it is happening in the sequence, so we will say this sequence will be arithmetic sequence और arithmetic progression. तो इसमें पहला टर्म देखिएगा A1 को हम पहला टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म A1 इज नोन एज फर्स्ट टर्म, और ये जो डिफरेंस यानी an प्लस वन माइनस an इजकल टू d है, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यानी हम ए देखेगा कॉमन डिफरेंस इज d. सो A1, A2, A3, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म को हमने माना a, सेकेंड टर्म को क्या होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या था, यानी सक्सेसिव टर्म कैसे मिलेगा, प्रीवियस टर्म में d ऐड करके. तो दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस टू डी. और इसी तरह से हम an की बात करें, यहाँ पर देखिएगा an क्या मिल रहा है, a1 क्या मिल रहा है a प्लस जीरो डी, a2 क्या मिल रहा है a प्लस वन डी, यहाँ पर वन डी है, a3 कैसे मिल रहा है a प्लस टू डी, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कैसे आया, इस 3 से एक कम करके. कहने का मतलब यह है कि an कैसे आएगा, a प्लस n का एक कम करेंगे तो n माइनस वन और इसके साथ d आ जाएगा. सो an विल बी a प्लस n माइनस वन डी. इसको जनरल टर्म कहते हैं, nth टर्म. नाउ प्रॉपर्टी AP की, so we can verify this property. So the different properties are, if a constant is added to each term of AP, the resulting sequence is also AP. ये जो आपका देखिएगा सीक्वेंस, हमारा सीक्वेंस क्या है AP का, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं A1 इज A प्लस डी, कॉमा a प्लस टू डी, कॉमा a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन. अगर इस सीक्वेंस में हम कुछ पर्टिकुलर ऐड करें, सो एक कांस्टेंट को ऐड करें इन ईच टर्म, सो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी AP. नाउ इफ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, सिमिलरली अगर एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम ईच टर्म ऑफ AP, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो NAP. सिमिलरली अगर हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, the resulting sequence is also AP. If each term of AP is divided by a non-zero constant, remember non-zero constant को हम divide करें प्रत्येक term से, then the resulting sequence will also be AP. यहाँ पर कुछ notations जो हम generally use करेंगे, A का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, L का मतलब क्या है कि लास्ट टर्म, D is no common difference, N is number of terms and Sn is the sum to n terms of AP. Remember, Sn is the sum to n terms of AP. So series हमारी क्या है, sequence क्या है, a plus d, a plus 2d and so on, a plus n minus 1d. This is general term an. So it is a1, a2, a3, an. This a1, a2, a3, an. So this is our AP. Okay. देन द लास्ट टर्म या जनरल टर्म इसको हम कहते हैं, लास्ट टर्म an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी. और यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn का फॉर्मूला होगा n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन डी. और इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि देखेगा इसको हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई टू, और 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन डी, और इसको हम लिख सकते हैं इट इज लास्ट टर्म L. सो वी कैन राइट Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस L. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इन एन AP द mth टर्म इज n and the nth टर्म इज m, where m is not equal to n. फाइंड द pth टर्म. हमने AP फाइंड करना है, तो am दिया हुआ है, am और an दिया हुआ है, इट इज n एंड इट इज m. और am क्या होगा एज पर द फॉर्मूला, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है an इज टू a प्लस n माइनस वन डी. तो mth टर्म यानी n को m रखेंगे, n की जगह m रख दीजिएगा, तो am इज टू a प्लस m माइनस वन डी, इट विल बी n, एंड an इज टू a प्लस n माइनस डी, इट इज इक्वल टू n.
और देखिएगा a प्लस एम माइनस वन डी एन आया इक्वेशन 1 की फॉर्म में, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एम आया इक्वेशन 2 की फॉर्म में। अगर इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, तो फर्दर हम इसको लिखेंगे m माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये आ जाता है एम डी माइनस डी और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से ब्रैकेट को माइनस डी से, तो माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। डी से डी कैंसिल आउट हो गया और इसमें डी कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो एम माइनस एन लिख सकते हैं इसको। अब ये एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, सो डी की वैल्यू आ गई माइनस वन। सो डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 में हम पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन रख देते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस एम माइनस वन और d की वैल्यू हमने माइनस वन रख दी, सो इट इज n। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस, देखिएगा अब माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m के साथ तो माइनस m हो जाएगा, और माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस वन आ जाता है, इट इज n। तो a की वैल्यू आ जाती है n प्लस m माइनस वन, ये साइड चेंज करके, यानी a को हम कह सकते हैं m प्लस n माइनस वन। तो a हमारे पास है, a m के पैरामीटर्स हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व कर लिया और कॉमन डिफरेंस हमने सॉल्व कर लिया। अब हम वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AP, pth टर्म। सो AP एज पर दिस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, इसे AP आ जाता है a प्लस, यहाँ पर n को p रखेंगे p माइनस वन डी। अब हम a और d की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू हमने निकाली थी m प्लस n माइनस वन, सो प्लस p माइनस वन, और d की वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस वन, इस माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है m प्लस n माइनस वन, प्लस माइनस वन को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस p आ जाएगा, माइनस वन को माइनस वन से करेंगे प्लस वन। अब माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट हो गए तो ये आ गया हमारा m प्लस n माइनस p। सो आंसर इज m प्लस n माइनस p। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 5। इसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज np प्लस वन बाई टू nn माइनस वन क्यू। तो ये Sn दिया हुआ है, दिस इज गिवन Sn। सो Sn इज इक्वल टू दिस। Now where p and q are constants, p और q constants है, find the common difference। हमने इसमें common difference means d निकालना है। अब देखिएगा Sn दिया हुआ है, सो अगर हम सीरीज की बात करें, फॉर एग्जांपल सीरीज हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an। देखिएगा अगर हम S1 क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ, यानी S1 का मतलब क्या है, यानी n इज इक्वल टू वन ओनली, तो S1 विल बी इक्वल टू ओनली सम ऑफ वन टर्म मीन्स a1। और अगर हम S2 की बात करें, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म क्या है हमारे, a1 और a2, तो ये आ जाता है a1 प्लस a2, यानी S1 हमने कैलकुलेट कर लिया, S1 का मतलब a1 होता है, S2 कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या देगा आपको, S2 माइनस S1। इससे क्या मिल जाएगा, a1 प्लस a2 माइनस a1, तो ये आ जाता है, यानी S2 माइनस S1 को हम क्या कह सकते हैं, a2। तो S2 माइनस S1 आपको क्या देगा, a2 देगा, इक्वेशन 3। यानी अब आपके पास देखिएगा कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1। सो पहले आपने क्या है कि a1 फाइंड करना है, a1 का मतलब S1 फाइंड करना है, फिर आपने a1 प्लस a2 फाइंड करना है मीन्स S2 फाइंड करना है, और S2 माइनस S1 आपको क्या दे देगा, ये a2 दे देगा। और a2 और a1 आपके पास मिल गया तो a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कर दो, d मिल जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपने याद रखने। सो Sn दिया हुआ है ये, तो S1 का मतलब क्या है,
यानी Sn का, ये Sn में Sn जो दिया हुआ है आपको np प्लस 1/2, यानी ये देखिएगा मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू np प्लस 1/2 n माइनस 1 q। इस इक्वेशन के हिसाब से हम चलेंगे, तो इस इक्वेशन से हमने S1 देखेगा, S1 निकालना है, S2 निकालना है, तो n इक्वल टू 1 रखिएगा, n इक्वल टू 2 रखिएगा, n 1 रखेंगे तो S1 इज इक्वल टू A1 P आ जाएगा, इसमें n इक्वल टू 1 रखिएगा, तो क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 तो ये जीरो कर देगा, ये टर्म पूरा ये हो जाएगा जीरो, तो S1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू पी, तो S1 विल बी पी। सिमिलरली S2 जिसको कि हम A1 प्लस A2 कहते हैं, n की जगह 2 रख दीजिएगा, सो 2p प्लस 2 माइनस 1 q, इससे आ जाता है 2p प्लस q। अब A2 आपको कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1 करने से ये p प्लस q आ जाता है, और कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1 करने से ये आपका q आंसर आ जाता है। Example 6, the sum of n terms of two arithmetic progression, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक पहला AP1 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1, दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 है, तो इसके हम फर्स्ट टर्म A1 मान लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म A2 मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस D1 मान लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस D2 मान लेते हैं। So nth sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 ratio 7n plus 15. Find the ratio of their 12th terms. हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म मीन्स हमने निकालना है A12 AP1 का डिवाइडेड बाय A12, यानी 12th टर्म निकालना है AP2 का, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP मींस, अगर हम इसकी बात करें सम का मतलब सम AP1 n टर्म्स का Sn AP1 कह सकते हैं अपॉन Sn AP2, इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। सो इसको हम लिख लेते हैं Sn1 भी कह सकते हैं इसको, मतलब Sn1 अपॉन Sn2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको हम क्या कह सकते हैं देखिएगा, Sn1 का मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 के लिए, 1 के लिए हम a की जगह A1 रखेंगे, d की जगह D1, n सेम रहेगा। इसी तरह से सेकंड सीरीज के लिए, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a की जगह A2 और d की जगह D2 रखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, Sn1 का मतलब क्या है कि n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन n बाई 2a2 plus n minus 1 d2, so it will be equal to 3n plus 8 upon 7n plus 15, n by 2 से n by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है देखिएगा कि ये हमने फाइंड करना है, यानी हमने फाइंड करना है A12 पहली सीरीज के लिए अपॉन A12 दूसरी सीरीज के लिए। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, A12 क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूला से जनरली A12 क्या हो जाता है, a प्लस 12 माइनस 1, यहाँ पर आ जाता है 12 माइनस 1, तो ये आ जाता है 11d। सो A12 विल बी इक्वल टू a प्लस 11d। तो हम पहली सीरीज के लिए a की जगह A1 लिखेंगे और d की जगह D1 लिखेंगे, तो ये आ जाता है दूसरी सीरीज के लिए A2 प्लस 11 D2। अब इसको हम इक्वेशन, अभी इसको इक्वेशन इस 1 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, अभी इसको इक्वेशन फॉर्म नहीं करेंगे, यहाँ पर 2a1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2a1, यानी यहाँ से हमको हिंट मिल रही है, इसको फर्दर हम एक्सपेंड करें, इसको हम रेशलाइज कर दें, यानी रेशलाइज करें 2 से, ताकि यहाँ पर 2 आ जाए, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं A12
1 upon A12 2, इट विल बी इक्वल टू, अगर हमने इसको 2 से रेशलाइज किया, 2/2 कर दिया, तो 2 से रेशलाइज करने से ये 2 क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2A1 प्लस 22D1 अपॉन, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2A2 प्लस 22D2। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। यहां पर 2A1 है, यहाँ n-1 d1, यहाँ पर 22 d1, यहाँ पर 2A2 n-1 d2 या 2A2, ठीक है, 22 d2। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो n-1 हमारा क्या आ रहा है, n-1 22 आ रहा है, यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-1 है। इट मीन्स n-1 is equal to n-1 is equal to 22, means n is equal to 23। अगर हम इक्वेशन 1 में n is equal to 23 रख दें तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, 2A1 प्लस यहाँ 23 रखिएगा तो ये 22 आ जाता है, D1 आ जाता है। इसी तरह से नीचे 2A2 प्लस 22 D2 इज इक्वल टू, n की जगह क्या रखेंगे, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 23 69 होता है, 69 प्लस 8 एंड 69 प्लस 8 ये आ जाता है, देखिएगा इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 69 प्लस 8 इज 77। इसी तरह से 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 तो 161 प्लस 8 ये आ जाता है 169। और इसको हम फर्दर 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 7 जा 77 एंड 11 1 जब एक्चुअली यहाँ पर 7n प्लस 15 है, सो यहाँ करेक्शन कर लीजिए, 7n प्लस 15 ये आ जाता है, यानी इसमें 15 ऐड कर देते हैं, 176, सो दिस इज 176। तो 11 से जाएगा 16 टाइम्स। सो दिस रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको दोबारा से, 2A1 प्लस 22D1 अपॉन 2A2 प्लस 22D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/16। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन 2 क्या है, 812 यानी 12 टर्म अपॉन 12 टर्म सेकंड सीरीज के लिए इज इक्वल टू 2A1 प्लस 22D1। और इक्वेशन 3 को देखेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन से, इसको हम मैच करेंगे इसके साथ, A12 अपॉन A12 इट इज इक्वल टू 7/16। सो द रिक्वायर्ड रेशियो, जो आंसर पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 7/16। नाउ एग्जांपल 7 करते हैं। एग्जांपल 7 में दिया हुआ है, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की इनकम 3 लाख है, इसको फर्स्ट टर्म हम मान लेंगे ए, एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ, सो हर साल उसकी जो इनकम इंक्रीज हो जाती है एवरी ईयर 10,000, इसको डिफरेंस मान लेंगे क्योंकि हर साल होती है ये। सो दिस विल बी टी, ए विल बी 3 lakhs, डी विल बी 10,000 फॉर द नेक्स्ट 20 years। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 years। तो एन इक्वल टू आ जाता है 20 years। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला एस एन अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। सो n की वैल्यू रख दीजिएगा, a की वैल्यू और d की वैल्यू रखेंगे, n-1 19 हो जाएगा। सो n इज 20, n-1 विल 19। सो ये आंसर आ जाता है 79 lakhs। So then the person will receive rupees 79 lakhs as the total amount in the end of 20 years।
Now, what is arithmetic mean? Arithmetic mean, as the name is suggesting, this is the mean of two numbers. So let two numbers are A and B. Now we can insert a number A between them so that AAV is an AP. So A और B के बीच में हमने A इंसर्ट कर दिया बीच में, ताकि ये क्या बन जाए, AP बन जाए. अगर AP है तो डेफिनेटली क्या होगा, यानी AN plus 1 minus AN will be D, और सो A माइनस, यानी देखिएगा A minus A will be equal to this B minus A. सो इसके हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं. कैसे कि A, इस A को इधर ले आएगा प्लस A इज इक्वल टू B, इसको इधर ले आएगा प्लस A. सो 2A इज इक्वल टू B प्लस A को A प्लस B लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स A विल बी इक्वल टू A प्लस B by 2. So this is known as, this A is known as the arithmetic mean of number A and B. इसी तरह से जनरली हम, अगर हमारे पास दो नंबर है A and B, हमने इंसर्ट करने हैं n नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन A and B, ताकि ये हमारी AP बन जाए. सो A देखिएगा, A और B के बीच में हमने n नंबर्स आर टू बी इंसर्टेड. A1, A2, AN एंड सो ऑन AN हमने इंसर्ट किया हुआ है. यानी इसको मैं यहां पर लिख देता हूं A1, A2, A3. इस तरह से AN हमने इंसर्ट कर दिए A और B के बीच में. तो यहां पर देखिएगा, अगर आप देखें तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स अब कितने हो गए. नंबर ऑफ टर्म्स नाउ इज इक्वल टू, ये n तो हमने इंसर्ट किया, n नंबर, ये n नंबर्स है और दो नंबर पहले से, तो ये हो गए n प्लस 2. इस b को क्या कहेंगे हम, लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म विल बी b. लास्ट टर्म मींस इसको कहते हैं लास्ट टर्म an, n की जगह क्या है n प्लस 2, यानी ये कौन सा है, लास्ट टर्म n प्लस 2th टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 2. तो हम कहेंगे an प्लस 2 विल बी b. सो an प्लस 2 विल बी b. an प्लस 2 क्या होगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 t, इट विल बी इक्वल टू b. तो इसको हम क्या कहेंगे, a प्लस n प्लस 1 d, इट विल बी इक्वल टू b. तो हम कह सकते हैं इससे n प्लस 1 d इक्वल टू b माइनस a, और n या d क्या आ जाता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1. सो d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दिस गिव्स d इक्वल टू दिस. तो नाउ देखिएगा a1 क्या होगा हमारा, a1 कैसे मिलेगा, a1 मिलेगा a में d ऐड करके. सो a1 विल बी a प्लस d. और a2 कैसे मिलेगा, a1 में d ऐड करके, यानी a प्लस d में d ऐड करना है तो a प्लस 2d मिल जाता है. a3 कैसे मिलेगा, a2 में देखिएगा, a2 कैसे मिलेगा, a2 विल बी a1 प्लस d. सिमिलरली a3 विल बी a2 प्लस d. तो a2 आ जाता है a प्लस 2d, इसी तरह से a3 आ जाता है a2, यानी a प्लस 2d में d ऐड करेंगे a प्लस 3d. और an कैसे मिलेगा हमें, an विल बी ओके a प्लस एन डी, इट विल बी a प्लस एन डी. सो ये हम यहां से भी देख सकते हैं. एक्चुअली देखिएगा यहां पर ये an क्या है, ये है क्योंकि b क्या था, n प्लस 2th टर्म, an क्या होगा, n प्लस 1th टर्म. तो n प्लस 1th टर्म क्या होगा, a n प्लस 1 एज पर द फॉर्मूला a प्लस n प्लस 1 माइनस 1d. सो a n प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू a प्लस एन डी. और ये जो a n प्लस 1 है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज a n. सो a n विल बी इक्वल टू a प्लस एन डी, इट विल बी a प्लस दिस. तो इस तरह से हम यानी n नंबर ऑफ टर्म्स को इंसर्ट कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल 8, इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 और 24 के बीच में हमने 6 नंबर इंसर्ट करने हैं. देखिएगा 3 और 24 के बीच में हमने 6 नंबर इंसर्ट कर दिए, a1, a2, a3, a4, a5, a6. इसका मतलब क्या, ये नंबर क्या होगा हमारा, देखिए फर्स्ट टर्म विल बी 3, ठीक है, b विल बी लास्ट टर्म, n विल बी 8, यहाँ पर n इज 8, तो दिस विल बी लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का मतलब क्या है, दिस विल बी a8. सो a8 को हम क्या कहते हैं, a8 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 24,
और A8 होता है A plus 7D is 24. A की वैल्यू रख देते हैं. A की वैल्यू is 3 plus 7D is 24. तो 7D is 24 minus 3 means 7D is equal to 21. इससे D की वैल्यू आ जाती है 3. अब D की वैल्यू 3 हमने फाइंड कर ली. सो A1 क्या है? A plus D. A2 क्या है? A plus 2D. A3 क्या है? A plus 3D. A4 क्या है? A plus 4D. A5 is A plus 5D. A6 is A plus 6D. तो इसमें हमने सिर्फ A और D रखना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे. A1 will be 6, A2 will be 9, A3 will be 12, A4 will be 15, A5 will be 18, A6 will be 21. So between, hence the 6 number between 3 and 24 are 6, 9, 12, 15, 18 and 21. Geometric progression. A sequence is said to be geometric progression or GP if the ratio of any term to its preceding term is same throughout. So ratio of any term means an plus 1. If an plus 1 upon an for a sequence is equal to a common ratio denoted by R, so that sequence is known as geometric series or geometric progression. So this constant factor is called common ratio. So common ratio means R. So if an plus 1 upon an is R, this ratio R is known as common ratio. So usually we denote the first term of GP by A and its common ratio by R, and the general term n is given by an is equal to A into R to the power n minus 1. The sum Sn of first n term of GP is given by Sn is equal to A R to the power n minus 1 upon R minus 1, or A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R if R is not equal to 1. Remember, if what happens if R is equal to 1? So if R is equal to 1, then our series is, you know, A plus A plus A plus A plus A plus and so on. So n times. So in that case the Sn will be equal to, if A is added n times, so it is equal to A into n or n into A. So if R is equal to 1, then Sn is equal to n into A, and if R is not equal to 1, then Sn is equal to either Sn will be this or Sn will be equal to this. So Sn will be equal to A R to the power n minus 1 upon R minus 1. So this is the case if R mod of R, you know, is greater than 1. And ये formula लगेगा Sn का. So if R mod of R, it will be less than 1. So now this geometric mean, you know, geometric mean like arithmetic mean, we define geometric mean also for any two positive numbers. So A and B are two positive numbers. तो इनके बीच में G इस तरह से हमने insert किया हुआ है कि it becomes GP. So we can say because an plus 1 upon an is R, so यहाँ भी इसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे. G upon A is equal to B by G होगा. So क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम कह सकते हैं G into G in G square is equal to AB. That means G is equal to under root of AB. So this G is known as geometric mean. Here G is geometric mean. Example 9, find the 10th and nth term of GP. GP दी हुई है 5, 25, 125 and so on. इसका first term is this and ratio will be 25 upon 5 or 125 upon 25. So ratio आ जाता है 5. और यहाँ पर देखिएगा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an is equal to a, n is a r to the power n minus 1. तो a10 कितना आ जाता है, a10 is equal to a into r की पावर 10 minus 1, a r की पावर 9. So it is a into r की पावर 10 minus 1, a into r, a और r की वैल्यू रख दी 5 की पावर 10. So general term a r की पावर n minus 1, a is 5, r is 5, so it becomes 5 की पावर 9. Example 10, which term of GP? GP दी हुई है 2, 8, 32 up to n terms is
this, मतलब ये दिया हुआ है, this is an. So an is given, this will be a and r will be 8 by 2, r will be 4. So a is 2, r is 4. So we know an is given. So an is a r की power n minus 1 and an is 131072. This is given. Put the value of a, it is 2. Put the value of 4, r is 4. So to the power n minus. So इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 2 को इधर ले जाइएगा. So it becomes 131072 by 2 is equal to 4 की power n minus 1. So we can say 4 की power n minus 1 is equal to, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाता है 65536 और तो मीन्स 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये 4 की पावर होती है 8. तो बेस इज सेम, वी कैन से n माइनस 1 इज 8 मीन्स n इज 8. सो वी कैन से दिस टर्म यानी 1,31,072 is the 9th term of GP. 11 question, example 11, in a GP the third term यानी A3 is given 24 and 6th term A6 is given 192. Find the 10th term, A10 find करना है. So A3 को हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है an is equal to AR to the power n minus 1. So A3 will be equal to AR square. इसी तरह से you know A6 will be equal to AR की पावर 5. तो इनको हम रख लेते, ये दिए हुए. तो A3 is 24, A6 इतना 192. तो A6 को आप A3 से अगर डिवाइड करेंगे तो A6 कितना है, AR की पावर 5 और A3 कितना है, AR स्क्वायर. और A6 दिया हुआ है 192 डिवाइडेड बाई 24. A से A कैंसिल होके R3 आ जाता है. ओके, R3 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 24 से देखिएगा डिवाइड कर लेते हैं 8. सो R की वैल्यू हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8. सो R आ जाता है 2. सो R इज 2. R की वैल्यू हम देखिएगा इसमें रख सकते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है A10. सो A10 क्या हो जाता है, A इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, ए आर की पावर 9. सो A10 आ जाता है. A की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि R तो हमने फाइंड कर लिया, R हमने फाइंड कर लिया 2. तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में ए आर स्क्वायर दिया हुआ है 24 और A इंटू आर की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इज 24. सो A इंटू 4 इज 24 और इससे A आ जाता है 24 बाई 4, A इज इक्वल टू 6. A6 आ गया तो A10 क्या होगा, AR की पावर 9, 6 इंटू R, R हमने फाइंड किया है 2 की पावर 9. तो ये आ जाता है 6 इंटू 2 की पावर 9. सो इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 की पावर 9. ओके, तो ये आ जाता है 2 की पावर 9 इज 512. सो 512 इंटू 6 आ जाता है, इसको 6 इंटू 512. सो ये सॉल्व करके आ जाता है 3072. तो इस तरह से हम A10 फाइंड कर लेते हैं. एग्जाम्पल 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब हमने Sn फाइंड करना है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मीन्स S5 फाइंड करना है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज. इसमें ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये A हो जाएगा, A इज 1 और R क्या हो जाएगा 2/3/1 या 4/9 अपॉन 2/3. सो R आ जाता है 2/3. सो A इज 1, R इज 2/3. Sn का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर R इज लेस देन 1. सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R. सो हमने A हमने रखा हुआ है 1 यहाँ पर 1. सो 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, इसको हम सिंप्लीफाई कर लिया. यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/3 और 1/3 से ये 3 है ना, 1/2/3 इज इक्वल टू 1/3. जब हम यहाँ पर 1/3 रखेंगे ये 3 इधर आ जाएगा तो 3 इट विल बी 1 माइनस 2/3 की पावर n. तो ये Sn आ गया. S5 निकालने के लिए n को हम 5 रख देते हैं, तो ये हमने n को 5 रख दिया. सो इट विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद
211/81. एग्जाम्पल 11, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n टर्म्स, n निकालना है हमने, ऑफ द जीपी 3/2 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम. ये Sn दिया हुआ है, आपको Sn दिया हुआ है, आपने n निकालना है. हाउ मेनी टर्म्स मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट n. और जीपी दिया हुआ है, ये a हो जाएगा. सो a इज 3. r क्या हो जाएगा? r विल बी 3/2/3. सो r विल बी 3/2 into 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2. सो r विल बी 1/2. एंड Sn दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला यहाँ पर, क्योंकि r इज लेस देन 1, mode of r is less than 1, तो we will apply this formula, a 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. और Sn की वैल्यू रख देते हैं, Sn is this. So Sn is equal to a की वैल्यू रख दी हमने 3, 1 minus r की पावर n. तो r की पावर n देखिएगा 1/2 की पावर n क्यों रखा है, तो r की पावर n की अगर बात करें, it becomes 1/2 की पावर n. So it becomes 1 की पावर n upon 2 की पावर n. And 1 की पावर n is 1/2 की पावर n. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर ये रखी हुई है. सो 1 दिस डिवाइडेड बाई 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 1/2 होगा. ओके, ये 1/2 होगा, तो ये 1/2 यहाँ आएगा आंसर, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में. सो ये इट बिकम्स 6. तो 6 1 minus 1/2 की पावर n, तो ये आंसर हो जाएगा. इसके बाद देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्दर इसको देखिएगा, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं, इसको 6 को हम इधर ले जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि 1 minus 1/2 की पावर n इज इक्वल टू, ये 6 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, साइड चेंज करके 3069 अपॉन 512 इंटू 6. तो ये आ जाता है 3069 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3069 आ जाता है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा. तो वी कैन से 1 minus 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1. और देखिएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये दिस इज 309 एंड दिस विल बी इक्वल टू 309, इट इज 3072. ये 3072. ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखिएगा 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू, इसको 3069 अपॉन 3072. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. -1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069 अपॉन 3072 -1. तो ये आ जाता है, यानी -1/2 की पावर n इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा माइनस, इसको एलसीएम ले लेते हैं 3072, तो ये आ जाता है 3069 माइनस 3072. और यानी -1/2 की पावर n आ जाता है -3 अपॉन 3072. और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2 की पावर n इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये आ जाता है 1024. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. और वी कैन से इस इक्वेशन से 2 की पावर n इंटू 1 इज इक्वल टू 1024 इंटू 1 मीन्स 2 की पावर n इज इक्वल टू 1024 means 2 की पावर n is equal to 1024 is 2 की पावर 10. So we can say n is equal to 10. So यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है 10. तो 10th term of GP, this are needed to give the sum 3069 upon 512. Example 14 करते हैं. The sum of first 3 terms of GP is 13y. 3 टर्म्स हमने लेना है. अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो रिमेंबर 3 टर्म्स हमने a/r a इंटू AR लेना है, क्योंकि ऐसे में प्रोडक्ट जो है ना, तो r से r कैंसिल होके प्रोडक्ट a क्यूब आ जाता है. तो ये जरूरी है, 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन आता है जीपी का, तो a/ar a अपॉन r कॉमा a कॉमा AR हमने ये फर्स्ट 3 टर्म्स लेना है, ये ध्यान हमने रखना है. सो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, देयर प्रोडक्ट इज दिस. फाइंड द कॉमन रेशियो मीन्स r निकालना है एंड द टर्म्स, r निकालना है और हमने ये टर्म्स निकालना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये निकालने हमने तीनों.
तो ये हमने मान लिया कि a अपॉन आर ए आर बी द फर्स्ट थ्री टर्म, इनका सम दिया हुआ है 13/12 और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो इस इक्वेशन 2 से आर कैंसिल होके a3 इक्वल टू -1 आ जाता है, और अगर हम रियल रूट्स को कंसीडर करेंगे तो a की वैल्यू -1 आ जाती है। सो a इक्वल टू -1 हम रखेंगे, देखिएगा इक्वेशन 1 में a इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हमने r एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर -1 -r स्क्वायर आ गया 13/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 -12r स्क्वायर इक्वल टू 13r आ गया। और हमने क्या करना है, इन सबको इस साइड में ले जाना है, तो यहाँ 0 बचेगा, इक्वल टू 13r प्लस 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर। अब इसको साइड चेंज करके लिख देते हैं, यानी 12r स्क्वायर प्लस 12r एंड 13r इज इक्वल टू 25r प्लस 12, इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म्स करेंगे, 12 इंटू 12 इज 144 एंड 144 के फैक्टर हो जाते हैं, यानी 16 इंटू 9 इज 144 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, ये हो जाते हैं, प्लस स्प्लिट कर सकते हैं इस 25r को, ये हो जाता है 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा 12r, इसमें r कॉमन है और 4 कॉमन है, सो 4r 3r प्लस 4 प्लस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर 3r प्लस 4 आ जाता है इज इक्वल टू 0। सो 3r प्लस 4 फर्दर कॉमन है, 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो इससे r की वैल्यू आ जाती है -4/3, और अगर 4r प्लस 3 0 रखेंगे तो r की वैल्यू आ जाती है -3/4। तो अगर हम r इक्वल टू -3/4 लेते हैं तो हमारे थ्री टर्म्स जो हैं, थ्री टर्म्स क्या क्या हैं, a/r, a एंड ar, इनमें हम a और r की वैल्यू रखेंगे तो हमारे ये टर्म आ जाएंगे। और अगर हम r इक्वल टू -4/3 कंसीडर करते हैं तो इसमें a और r की वैल्यू रखने से ये तीन टर्म्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस 7 77 777 7777। तो इसमें क्या है कि 7 देखिएगा, एक 7 डिजिट हर सीक्वेंस में बढ़ती चली जा रही है, तो हमने एसएन फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो 7 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 1, देखिए अब 1 यानी एक डिजिट 1 ऐड होती चली जाएगी सभी में, 111 प्लस 1 1 1 1 एंड सो ऑन, और ये आ जाते हैं एन टर्म्स के लिए हमने ये निकालना है। अब क्या करना है हमने, इसको देखिएगा ये 9 की फॉर्म में बनाना है, यानी 9 डिजिट बढ़ती चली जाए हर एक सीक्वेंस में। तो ऐसा करने के लिए हमने इसको रेशलाइज करना पड़ेगा, यानी इसको 9 से रेशलाइज कर दें। तो 7/9 तो बाहर ले लेंगे, इस 9 को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो इट बिकम्स 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 टू एन टर्म्स। अब इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, इस 99 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1, 99 इज 100 माइनस 1, सो 10 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से ये टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे और इस टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, 7/9 हम देखिएगा क्या कह सकते हैं, 10 प्लस 10 स्क्वायर, 10 वाले टर्म्स अलग अलग निकाल लीजिए, प्लस 10 की पावर 4, और ये n टर्म्स आ जाएगा। और इसके बाद हमने जो 1 है माइनस कॉमन लेके ये 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, n टर्म्स। तो अगर हम इसको देखें, ऑब्जर्व करें सीरीज को, देखिएगा ये तो हमारी बन गई जीपी, और इसको आप जीपी भी बोल सकते हैं या इसको एपी भी बोल सकते हैं, यानी 1 1 को अगर आपने n टाइम्स ऐड किया तो ये हो जाता है 1 इंटू n। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, यानी 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करते हो तो आंसर 5 आता है, 1 को 10 टाइम्स ऐड करते हैं आंसर 10 आता है, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर n आएगा। तो यहाँ पर 7/9 और यहाँ पर या लिखेंगे इसके लिए या n लिखेंगे, और इसके लिए देखिएगा ये जीपी है, जीपी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे
एस एन इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूला को यहाँ लगा सकते हैं ए, क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, आर इज 10, इस सीरीज की बात करें आर इज 10, तो आर इज ग्रेटर देन 1, मोड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। ए हमारा क्या है 10, तो यहाँ जाता है 10, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, आर की पावर एन 10 की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 7/9 10 और 10 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, और नीचे 10 माइनस 1 इज 9। सो ये कंप्लीट हो गया माइनस n। तो ये आंसर होगा। एग्जाम्पल 16 में दिया हुआ है ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स 8 ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, फाइंड द नंबर of his ancestors during the 10 generation preceding his own। तो पहला टर्म देखिएगा 2 पेरेंट्स ए हो गया, और अगर हम देखें यहाँ पर 4/2 इज 2, 8/4 इज 2 एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉमन रेशियो, ये जीपी बना रही है। n इज 10 जनरेशन की बात हो रही है, सो दिस विल बी n इज 10, तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि r यहाँ पर 2 है ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम ये, तो S10 विल बी 2, a की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू 2 रख दी, सो इट विल बी दिस। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इट विल कम आउट 2046। सो नंबर ऑफ एंसेस्टर्स प्रेसीडिंग द पर्सन इज 2046। नाउ वी डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन देखिए क्या है, अगर ए बी आर 2 नंबर्स, उनके बीच में हमने एक नंबर इस तरह से रखा g कि ये जीपी बन जाती है, सो g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, g इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। नाउ इन द सिमिलर वे वी कैन ऐड n पॉजिटिव n numbers g1 g2 up to gn between the numbers a and b such that this a g1 g2 g3 gn b this becomes gp। सो अगर हम इस b की बात करें, ये जो देखिएगा हमने n नंबर ऑफ टर्म्स ऐड किए, तो n में हमने a और b 2 टर्म ये हो गए, यानी ये लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे, और ये कौन सा टर्म होगा, n+2 टर्म, यानी a n+2 टर्म, इट विल बी b। और अगर हमने फॉर्मूला यूज देखिए, ए एन का फॉर्मूला बताया था ए आर की पावर n माइनस 1, तो ए एन प्लस 2 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n+2 माइनस 1, तो ये हो जाता है ए आर की पावर n+1। तो ये ए एन प्लस 2 कितना है, b है, तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू ए आर की पावर n+1। तो इससे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे, b बाई ए क्या हो जाता है, r की पावर n+1, और b की पावर a, इस पर 1 की पावर 1/n हम लगा सकते हैं, तो r की पावर n+1 की पावर 1/n+1, तो इससे यहाँ पर आ जाता है पावर n+1 इंटू 1/n+1, इट बिकम्स 1, सो r इज इक्वल टू b बाई a की पावर 1/n+1। तो इससे r की वैल्यू आ गई, तो ये हमने r इज b बाई a की पावर 1/n+1। सो g1 क्या है हमारा, g1 विल बी, देखिए अगर पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म क्या होगा, r मल्टीप्लाई होके मिलेगा ar, तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, r मल्टीप्लाई होके ar स्क्वायर, देन ar 3 एंड सो ऑन। ओके, सो फर्स्ट टर्म विल बी ar, सेकंड टर्म विल बी ar स्क्वायर, थर्ड टर्म विल बी ar 3, तो इन द सिमिलर वे nth टर्म विल बी, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 आ रहा है, यहाँ 2 है तो 2 आ रहा है, ar n, सो इट विल बी दिस। Example 17, insert 3 terms between 1 and 256। तो 1 तो हो जाएगा हमारा a, और ये 256 हो जाएगा लास्ट टर्म, और इसको b कह सकते हैं हम, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया, और दिस विल बी लास्ट टर्म मीन्स an। सो और ये जो टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, देखेगा हमने 3 टर्म्स इंसर्ट किए हुए हैं,
3 टर्म्स की बात हो रही है, तो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस विल बी फिफ्थ टर्म, यानी A5 इज गिवन, दिस इज 2 5 6। तो A5 का मतलब क्या है? A5 का मतलब AR टू द पावर 5 माइनस 1, AR4 इज 2 5 6, और A की वैल्यू है 1, सो 1 इंटू आर की पावर 4 इज 2 5 6। तो हम कह सकते हैं आर की पावर 4 इज 2 5 6, सो आर की पावर 4 इज 4 की पावर हम कह सकते हैं 4। तो इससे आर की वैल्यू आ जाती है, आर की वैल्यू देखेगा हम, आर की वैल्यू कह सकते हैं इट विल बी, आर विल बी प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 की पावर 4 भी, ठीक है, 256 होता है अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, और माइनस 4 की पावर 4 भी 256 होता है। तो आर की वैल्यू अगर हम रियल रूट्स की बात करें, टेकिंग द रियल रूट्स, so r is plus 4 and minus 4, so we can say if r is plus 4, so if r is plus 4, then g1 is ar, g2 is ar square, g3 is ar3, so it will be a की वैल्यू 1 है, तो 1 into 4, it will be 1 into 4 square, it will be 1 into 4 3, so it is 4, it is 16 and it is 64। ओके, इसी तरह से इफ r is minus 4, तो g1 is ar, g2 is ar square, g3 is ar3, so it becomes a is 1, r is minus 4, it is minus 4, and it is 1 into minus 4 का स्क्वायर, minus 4 का स्क्वायर is plus 16, so ये 16 आ जाता है, 1 into minus 4 की पावर 3, minus 4 की पावर 3 नेगेटिव आएगी, minus 64। तो या तो टर्म्स आपके 4 16 64 होंगे, या टर्म अगर आप माइनस 4 लेते हैं माइनस 4 16 माइनस 64 होंगे। Now relationship between AM and GM, we know that if A is AM, this A is AM and G is GM of two positive, हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, सो पॉजिटिव नंबर्स क्या है? A एंड B। सो इस A और B के बीच में अगर हम A रखेंगे तो इसको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे, और A और B के बीच में अगर हमने G रखा, और इस तरह से रखा है कि इट बिकम्स GP, और ये दिस बिकम्स AP। तो A को हम कह सकते हैं A विल बी इक्वल टू A प्लस बी बाई टू, एंड G विल बी इक्वल टू अंडर रूट AB। अब A माइनस G, so you know अगर हम A is equal to this, G is equal to this, we can say A minus G is equal to A plus B by 2 minus this, 2 LCM लेंगे तो ये आ जाता है A plus B minus 2 अंडर रूट AB। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको, यानी A plus B minus 2 अंडर रूट AB को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएं x माइनस वाई का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इट बिकम्स रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट A रूट B। रूट A का स्क्वायर इज A, रूट B का स्क्वायर इज B, A और B आर पॉजिटिव नंबर, ये दिया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर, तो B रूट B का स्क्वायर B माइनस 2 अंडर रूट A अंडर रूट B हो जाता है 2 अंडर रूट AB, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। और देखिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें A इज पॉजिटिव नंबर रियल नंबर, B इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो A कुछ भी है और B पॉजिटिव नंबर है, तो अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसका हमने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर देखिएगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का, कुछ भी अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, लेकिन स्क्वायर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी हम कह सकते हैं A माइनस G विल बी पॉजिटिव नंबर। और ये पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस टर्म विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। सो हम कह सकते हैं कि A माइनस G इज पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव कब होगा? व्हेन A इज ग्रेटर देन G, व्हेन A, और जीरो कब होगा? व्हेन A इज इक्वल टू G। सो हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया कि A विल बी इक्वल टू G और A विल बी ग्रेटर देन G। सो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं A विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन G।
एग्जाम्पल 18 में दिया हुआ है इफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 8। इसका मतलब क्या है कि a दिया हुआ है, a को हम am कहते हैं, सो a इज 10 एंड g इज 8। सो और नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। सो देखिएगा a दिया हुआ है 10, सो दिस मीन्स a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 10। तो इससे a प्लस बी की वैल्यू आ जाती है 20। सो a प्लस बी इज 20 और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 8। ज्योमेट्रिक मीन g इज 8 मीन्स अंडर रूट ए बी इज 8। तो ए बी इसको स्क्वायर करेंगे तो ए बी आ जाता है 64। इसको स्क्वायर करने से ए बी 64। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इससे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो इससे a माइनस बी का स्क्वायर आ जाता है a प्लस बी दिया हुआ है 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 4ab। 4ab इज 64, 4 इंटू 64 इज, ठीक है, 4 इंटू ab, ab is 64, so 4 into 64 is equal to 256 and 400 minus 256 is 144। so इससे a माइनस b आ जाता है अंडर रूट 124 और अंडर रूट 124 इज प्लस माइनस 12। तो एक बार हमने प्लस 12 वैल्यू लेना है और एक बार हमने माइनस 12 वैल्यू लेना है। जैसे हमने a प्लस बी 20 और a माइनस बी प्लस 12 अगर लिया तो इससे इसको ऐड करने से 2a आ जाता है 32, ओके, a आ जाता है 16 और a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3, इसमें a की वैल्यू 16 रखेंगे तो b की वैल्यू 4 आ जाती है। तो ये आ गया a 16 b 4 होगा। और अगर हमने a माइनस बी को देखेगा, a माइनस बी को माइनस 12 लिया तो एक बार फिर से करते हैं a प्लस बी 20, a माइनस बी इज माइनस 12, फिर से ऐड कर लेते हैं 2a इजकल टू इज आ जाएगा 8। तो इससे a की वैल्यू आ जाती है 4। a की वैल्यू 4 हम इस इक्वेशन a प्लस बी में रखेंगे 20 में, तो a4 रखने से b 16 आ जाता है, तो हमारा a4 b 16 आ जाता है। तो या तो a4 b 16 होगा या a16 b4 होगा। तो मीन्स द नंबर जो होंगे यानी 4 16 हो सकते हैं, a4 b16 या a16 b4, या तो 4 16 होंगे या 16 4 होंगे। Now we have to discuss sum of n terms of a special series. So we have a special series, sum of first n natural numbers. So this sum of first n natural number 1 plus 2 plus 3 up to n. The formula for this series is n plus 1 by 2. So the sum of first n natural number, it is equal to n plus 1 by 2. So we can say फर्स्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, समीशन ऑफ n इजकल टू 1, समीशन ऑफ k हम कह सकते हैं, समीशन ऑफ k n k इजकल टू 1 टू n, सो इट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। नाउ सेकेंड को हम लिख सकते हैं, सेकेंड इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, so k is equal to 1 to n, so it is, you know, k square. So this can be written as, you know, 1 square. If we put k is equal to 1 2 3, it becomes 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. So it is equal to n plus 1 to n plus 1 by 6. इसी तरह से थर्ड में सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो हम इसको क्या कहेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, k इजकल टू 1 से n, k की पावर 3, k टू द पावर क्यूब, तो it will be means if we put k इजकल टू 1 2 3, so this becomes 1 cube 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube, it will be equal to n plus 1 y to the
whole square. So remember these three formulas or these three sum to n terms of special series. So it will be used. So we will discuss some examples. Example 19. Find the sum to n terms of the series. और सीरीज दिया हुआ है 5, 11, 19, 29 प्लस 41 एंड सो ऑन. तो ये देखिएगा 5 ना तो ये एपी है ना जीपी है, तो एक स्पेशल सीरीज है. इसको हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, एसएन को हम लिख लेते हैं. देखिएगा क्योंकि इसमें देखिए लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म ए एन होगा और उससे प्रीवियस टर्म क्या होगा, ए एन माइनस वन होगा. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एस एन इजकल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन प्लस ए एन. तो ये हमने इक्वेशन 1 की फॉर्म में इसको लिख लिया. अब इसी को हम दोबारा से इसी को लिखेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, एक टर्म को छोड़ के हमने इसके नीचे लिखना है. तो एस एन इजकल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस अभी भी वही सीरीज हमने लिखा हुआ है इक्वेशन 2 की फॉर्म में. दोनों सीरीज एक जैसी है, बस हमने एक स्पेस छोड़ के इसको एक स्पेस आगे बढ़ा के हमने लिखा हुआ है. अब इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिएगा अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया, या माइनस 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 सब जगह माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया. तो एस एन से एस एन माइनस किया तो 0 आ गया. अब यहाँ पर क्योंकि देखिएगा 11 के नीचे -5 है, हमने ये कंसीडर करना है, इनको कंसीडर करना है हमने, रिमेंबर. तो 5 आ जाएगा पहले तो, और 11 से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया, और 19 से 11 को माइनस करेंगे तो देखिएगा 8 आ गया, और 29 से 19 को माइनस करेंगे 10 आ गया. इसी तरह से इसका मतलब नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगा, इसी फ्लो में आएगा. नेक्स्ट टर्म विल बी 12, नेक्स्ट टर्म विल बी 12 एंड सो ऑन. तो ये सीरीज बनती चली जाएगी, यानी ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू भी आपका कोई ऐसा टर्म आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा, जो कि देखिएगा अगर हम इसकी बात करें 6, 8, 10, तो ये एक एपी बनती चली जा रही है. इट इज एपी. इसमें कॉमन डिफरेंस क्या, फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 2. तो ऐसे यहाँ पर एपी वाला टर्म आएगा. तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में टर्म लिख रहा हूं. देखिएगा 5 तो ये एज इट इज लिख लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ये हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ये हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ये हो गया. नेक्स्ट टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जो भी प्लस जैसे यहाँ पर आएगा, 29 से आगे 31 आएगा, और 19 से आगे देखिएगा ये 20 कुछ और टर्म आएगा. मतलब ये तो हम ये डिफाइन टर्म में नहीं है. मींस नेक्स्ट टर्म जब ये इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा. जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई टर्म आएगा, ठीक है. और यहाँ पर ए एन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ टर्म आएगा प्लस समथिंग, और माइनस लास्ट में क्या लिखेंगे, माइनस ए एन. और अगर आप देखें इस सीरीज को, अगर आप देखें ये सीरीज क्या है हमारी, दिस इज एपी, दिस इज एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म ए इज 5 एंड डी इज, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 6, यहाँ इस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 की बात कर रहे हैं, एंड डी इज 2. और अगर हम बात करें इसके लिए देखिएगा, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें इस सीरीज की, नंबर ऑफ टर्म्स आर एन. तो यहाँ भी एन टर्म्स होंगे, यहाँ भी एन टर्म्स होंगे, लेकिन हमने एक स्पेस यानी एक जगह रिप्लेस करके एक स्पेस देके इस सीरीज को लिखा हुआ है. तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा. अगर हम बात करें 5 को इंक्लूड करके बात करें, पूरी की पूरी एन टर्म्स होंगे, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म ए एन आ जाएगा. इसको हम साइड चेंज करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इस ए एन को इधर ले जाइएगा तो ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 एंड सो ऑन. और अगर आप देखें ये तो पूरे के पूरे एन टर्म्स होंगे, डेफिनेटली एन टर्म्स होंगे, लेकिन इसमें ये जो सीरीज है ये एपी है. अब हम क्या लिखेंगे, एपी वाली सीरीज को लिखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, लेकिन यहाँ पर टर्म्स कितने लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5 हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब n-1 टर्म्स हो जाएंगे. अब हमने ए एन इजकल टू, सो ए एन क्या आ जाता है हमारा 5 प्लस, और इसको अगर n- टर्म्स को हमने ऐड करना है, यानी इसको हम कह सकते हैं एस एन माइनस वन. अब एस एन माइनस वन हमने निकालना है. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है
n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी। और अगर हम एस एन माइनस वन की बात करें, एन की जगह एन माइनस वन बाई टू आ जाता है, ये आ जाता है 2a प्लस एन माइनस वन डी, मीन्स ये आ जाता है एन माइनस वन बाई टू 2a प्लस एन माइनस टू डी। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखनी है, 6 रखनी है, और d की वैल्यू क्या रखनी है, d इज 2। ये पैरामीटर दिए हुए हैं, तो एस एन माइनस वन आ जाता है एन माइनस वन बाई टू, 2a की वैल्यू रखनी है 6 प्लस n माइनस टू, डी की वैल्यू हमने 2 रखनी है, तो ये आ जाता है n माइनस वन बाई टू 12 प्लस 2n माइनस 4, ये आ जाता है n माइनस वन बाई टू, और अंदर सॉल्व करके आ जाता है 2n प्लस 8, और ये आ जाता है n माइनस वन बाई टू, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाता है n प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और n माइनस वन इंटू एन माइनस वन, एन प्लस फोर, एन माइनस वन आ गया और एन प्लस फोर आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस एन माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। अब ये an में रख देते हैं इसको, सो an इज इक्वल टू 5 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, फाइनली an आ जाता है, an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n एंड 5 माइनस 4 इज 1, सो प्लस 1, सो an हमारा ये आ गया। अब sn क्या होता है, रिमेंबर sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ओके, k इज इक्वल टू 1 टू n ak, तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि an हमने फाइंड कर लिया, an इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो sn को हम कह सकते हैं कि देखिएगा, इससे a k की वैल्यू आ जाती है k स्क्वायर प्लस, इट मीन्स a k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, तो यहाँ हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। फर्दर इसको हम कह सकते हैं कि sn is equal to summation k is equal to 1 to n k square plus 3 summation k is equal to 1 से n k plus summation k is equal to 1 से n 1। so देखिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला, we know this formula, it is sum of squares of first n natural numbers, so it is equal to, formula इसका n plus 1 2n plus 1 by 6, so plus 3 times summation of k, it is n plus 1 by 2, and remember summation of 1, okay, summation of 1 from k is equal to 1, yani 1 plus 1 plus 1 up to n times, it is equal to 1 into n, so we can write this is equal to n। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो दिस विल बी इक्वल टू, वी कैन टेक 6 एज एलसीएम, सो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 9 n प्लस 1 प्लस 6n, इसको फर्दर सॉल्व हम कर लेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने Sn फाइंड कर लिया, Sn इज टू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 9 n प्लस 1 प्लस 6n बाई 6। इसमें अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो n इज कॉमन, तो n कॉमन लेने से देखिएगा फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इट इज इक्वल टू n बाई 6, n कॉमन ले लिया हमने न्यूमरेटर में से, तो अब ये बच गया यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 9 n प्लस 1 प्लस 6, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे n बाई 6, एंड n प्लस 1 2n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n
प्लस 1, 9 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9n प्लस 9 प्लस 6, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/6, और ये आ जाता है 2n स्क्वायर, n प्लस 2n प्लस 9n आ जाता है 12n, इसी तरह से 1 प्लस 9 प्लस 6 आ जाता है 16। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, सो इट इज n/6 इंटू 2, यहाँ बच गया n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, सो 2 से 3 टाइम्स गया, सो इट इज n/3, और इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे, 8 इज 4 इंटू 2, 4 प्लस 2 इज 6, सो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8, तो ये आ जाता है n/3, n कॉमन n प्लस 4 प्लस 2 कॉमन n प्लस 4, फर्दर n/3, n plus 4 is common, n plus 2. So we can say Sn is equal to n plus 2, n plus 4 divided by 3. Now example 20, find the sum to n terms of the series whose nth term is given n plus 3. So means an is given, n plus 3 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर प्लस 3n। अब उन्हें सम को कहते हैं एस एन इजकल टू समीशन के इजकल टू 1 to n ए के, और ए के क्या है, ए के इजकल टू के स्क्वायर प्लस 3k हम कह सकते हैं, तो पुट दिस, तो ये आ जाता है एस एन इजकल टू सम ऑफ के इजकल टू 1 से n के स्क्वायर प्लस 3k, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी सम ऑफ के इजकल टू 1 से n के स्क्वायर प्लस 3 इंटू सम ऑफ के इजकल टू 1 से n k. वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस एंड फॉर्मूला फॉर दिस, ये हमने रख दिया 3, ये एज इट इज यहाँ रहेगा, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ये कैसे आएगा देखिएगा, इसको फर्दर हम 6 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये आ जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2 3, ये 9 आ जाता है 9 n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिएगा कॉमन है, n कॉमन है और n प्लस 1 कॉमन है, ये हमने कॉमन लिया, तो ऊपर बच गया 2n प्लस 1 प्लस 9/6, तो ये आ जाता है n प्लस 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2n प्लस 10, तो फर्दर 2 कॉमन आ जाएगा, सो इट इज इक्वल टू n प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन लिया, n प्लस 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 6, 2 से 3 टाइम्स कटेगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, सो इट इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 5/3. नाउ वी विल सॉल्व द मिसलेनियस एग्जांपल्स। एग्जांपल 21 करते हैं, इफ pth, qth and rth and sh terms of an AP are in GP, any pth term, qth and rth and sh term of AP are in GP, then show that p minus q, q minus r minus s are also in GP. अगर हम pth टर्म की बात करें तो pth टर्म को हम AP कहते हैं, सो an का फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d, तो इससे pth टर्म, qth, rth और sh टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, हमने n को p q r s से रिप्लेस करना है, सो AP विल बी इक्वल टू a प्लस p माइनस 1d, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, aq विल बी a प्लस q माइनस 1d, सिमिलरली ar a प्लस r माइनस 1d and as will be a plus s minus 1d. तो ये इक्वेशन 1 2 3 4 की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। नाउ इट इज गिवन दैट AP, AQ, AR and AS are in GP, so we can say, क्योंकि देखिएगा AP, AQ, AR, AS are in GP, so हम कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी AQ अपॉन AP
विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू। और सिमिलरली इस तरह से हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, अगर हम कंसीडर करें यानी थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इट विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म इज ए आर, सो वी कैन राइट ए आर अपॉन सेकेंड टर्म ए क्यू, इट विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म ए एस अपॉन थर्ड टर्म ए आर। अब इससे देखिएगा हम ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू आर। सो नाउ ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू। ए पी माइनस ए क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए पी माइनस ए क्यू, दिस इज ए, तो ए पी माइनस ए क्यू। और इसी तरह से यहां पर हमने फाइंड करनी है वैल्यू, यहां पर देखिएगा ए आर माइनस ए एस, ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कहां से मिलेंगी हमें, ये हमारे को देखेगा, ये मिलेंगी इन इक्वेशन से, इक्वेशन 1 2 3 4। तो अगर हम देखें, क्योंकि वैल्यू हमने क्या क्या फाइंड करना है, ए क्यू माइनस ए आर, तो ए क्यू माइनस ए आर के लिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 2 और 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो वी कैन से ए क्यू माइनस ए आर विल बी इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यह क्या बचेगा, q माइनस 1d माइनस r माइनस 1d। तो ये आ जाता है क्यू डी माइनस डी माइनस आर डी प्लस डी। सो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाता है डी कॉमन लेके डी क्यू माइनस आर। यानी देखिएगा ए क्यू माइनस ए आर, ये आ गया डी कॉमन क्यू माइनस आर। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, लेट दिस इक्वेशन 5, क्योंकि ए क्यू माइनस ए आर, यहां पर देखिए ए क्यू माइनस ए आर, यहां पर क्यू माइनस आर आ रहा है, क्यू और आर सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, तो यहां पर क्यू माइनस आर आ रहा है, रिमेंबर डी। तो इसी तरह से सिमिलरली अदर्स हम ले सकते हैं जो डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस ए आर की वैल्यू रखेंगे, इट इज डी क्यू माइनस आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू, ए पी दिस इज ए, सो ए पी माइनस ए क्यू क्या आएगा, इसी तरह से आएगा ए पी माइनस ए क्यू विल बी इक्वल टू, इसके लिए हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, सो यह हमें देगा डी पी माइनस क्यू। सो इट विल बी डी पी माइनस क्यू, तो ये आ गया q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। इसी तरह से हम ए आर माइनस ए एस को सॉल्व कर सकते हैं, ए आर माइनस ए एस आएगा d इंटू आर माइनस एस अपॉन डी क्यू माइनस आर, तो ये आ जाता है आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6 एंड दिस इक्वेशन 7, और देखिएगा कि q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू ये आया है, ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ये, और ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर आया है, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। अब हम इक्वेशन देखिएगा 6 और 7 से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी कैन से q माइनस आर, ये ऊपर लिख लेते हैं, q माइनस आर अपॉन p माइनस q, इट विल बी इक्वल टू r माइनस s अपॉन q माइनस r। ठीक है, ये हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारी बेस इक्वेशन क्या थी, ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू, इससे हमने वैल्यू निकाली ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू, तो ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। सो ये ठीक है, और ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर, तो ये भी कांस्टेंट है।
सो ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर भी कॉन्स्टेंट होगा और ये कॉन्स्टेंट इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 6, 7 से. सो फ्रॉम equation 6 and equation 7 we can say this will be equal to this, q minus r upon p minus q will be equal to r minus s upon q minus r. It means q minus r का whole square is equal to p minus q r minus s. तो हमने देखेगा क्योंकि ए जी वी अगर जीपी में है तो हम कह सकते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. तो ऐसा तब होता है जब ए जी बी जीपी में हो. तो अगर इसको कंपेयर करें क्यू माइनस आर स्क्वायर इजकल टू पी माइनस क्यू आर माइनस एस, तो ये जी हो जाता है जी स्क्वायर इजकल टू ए इंटू बी, ये फर्स्ट एंड ये ए हो जाता है बी. और हम कह सकते हैं कि पी माइनस क्यू इट मीन्स पी माइनस क्यू और क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर इन जीपी. यही हमने प्रूव करना था. Example 22, if a, b, c are in GP and a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power 1 by z, prove that x, y, z are in GP, AP. So इसको हम मान लेते कि let this is a constant, a की power 1 by x is equal to b की power 1 by y is equal to c की power 1 by z is constant. तो हम कह सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से हम इसको करेंगे. ए की पावर एक्स इज कांस्टेंट, दोनों साइड की पावर एक्स कर लेते हैं. पावर एक्स इज टू के की पावर एक्स, तो ये आ जाता है ए की पावर 1 बाई एक्स इंटू एक्स इज के की पावर एक्स. तो हम कह सकते हैं एक्स से एक्स कट गया, ए की पावर 1 को हम ए लिखेंगे इज के की पावर एक्स. तो इसी तरह से ए विल बी के की पावर एक्स, सिमिलरली बी विल बी के की पावर एक्स एंड सी विल बी के की पावर जेड. यानी a इज के एक्स के की पावर एक्स, b इज के की पावर y, c इज के की पावर z. तो सिमिलरली इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे. और ये दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन जीपी. अगर ए बी सी जीपी में है तो हम इस बी स्क्वायर को कहेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. अब b हमने k की पावर y रखना है, a हमने k की पावर x रखना है और c हमने k की पावर z रखना है. तो इसको रखते हैं, देखेगा b का स्क्वायर मीन्स k की पावर y का स्क्वायर, a इज k की पावर x, c इज k की पावर z. तो पावर के जो फॉर्मूलेज है उसको हम यूज करेंगे. इसको लिखेंगे k की पावर y की पावर 2 को हम k की पावर 2y लिख सकते हैं, और यहाँ पर k की पावर x k की पावर z बेस इज सेम, तो k की पावर x प्लस z लिख सकते हैं. सो सेम बेस के लिए हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि 2y विल बी इक्वल टू x प्लस z. ऐसा कब होगा? जब x y z ये इक्वेशन कब आएगी? क्योंकि देखिएगा अगर x y z AP में है तो हम कह सकते हैं y माइनस एक्स विल बी z माइनस वाई, मीन्स y प्लस वाई विल बी इक्वल टू x प्लस z, मीन्स 2y इक्वल टू x प्लस z. और अगर ऐसा है 2y इक्वल टू x प्लस z तो x y z आर इन AP. तो यही हमने प्रूव करना था. एग्जाम्पल 13 करते हैं. इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट, इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस पी सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन equal to 0. Then show that A, B, C and D are in GP. हमने ये इसको हमने प्रूव करना है कि अगर ऐसा है लेस देन इक्वल टू 0 है ये, तो then show that A, B, C, D are in GP. करते हैं इस क्वेश्चन को. इस इक्वेशन को लिखते हैं हम. इक्वेशन दिया हुआ है, it is given that a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd ब्रैकेट क्लोज p
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये आ जाता है ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cdp प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने इसको रीअरेंज करना है टर्म्स को, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ हम ले लेते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ हम 2abp इसको कंसीडर कर लेते हैं, और तीसरा टर्म पेयर बनाने के लिए इसको ए स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, बी स्क्वायर, कंसीडर दिस बी स्क्वायर। तो यहां देखिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर तो यहाँ है, मीन्स ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2abp प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पेयर बना लिया। और बी स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ देखिएगा हम ले लेते हैं, यानी बी स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ ले लेते हैं ये टर्म माइनस 2bcp, और इसके साथ हम ले लेते हैं सी स्क्वायर। बाकी जो बच गए उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बच गया सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस ए स्क्वायर, सो इट इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, देखिएगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर आप ओपन करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इट विल बी ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abp। इसी तरह से हम सेकेंड ब्रैकेट को लिख सकते हैं, इट विल बी bp माइनस सी स्क्वायर, bp माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम cp माइनस d का होल स्क्वायर। सो अब हमने ये लेस देन 0, ये गलत है, लेस देन 0 तो होगा नहीं, क्योंकि दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, ये डिफरेंस नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, और इस डिफरेंस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आना ही आना है, और इस डिफरेंस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, इस डिफरेंस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, तो हम कहेंगे कि वी कंक्लूड कि ऐसा नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, and same quantity less than equal to 0, same quantity greater than equal to 0, so contradiction है, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है, only one thing is common, जिसको कि हम सॉल्यूशन मानेंगे कि AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर, ना तो देखिएगा ग्रेटर देन 0 और यहाँ लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे इक्वल टू 0, कॉमन हम इसको कंसीडर करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। और ये कब 0 होगा, व्हेन दिस टर्म, ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर, यानी ये कब होगा, जब AP माइनस ये 0 तब होगा जब AP माइनस बी इज 0 एंड BP माइनस सी इज 0 एंड CP माइनस CD इज 0, मीन्स वी कैन से AP माइनस B इज 0, और कह सकते हैं हम BP माइनस सी इज 0, और हम यहां से कह सकते हैं CP माइनस D इज 0। तो यहां हम कहेंगे इसको, इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, AP इज इक्वल टू B, इसको कह सकते हैं BP इज इक्वल टू C, इसको कह सकते हैं हम CP इज इक्वल टू D। मीन्स अगर हम P से इसको डिवाइड करें, सो AP बाई P इज इक्वल टू B बाई P, या
हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है इससे एक्चुअली. सो p इज इक्वल टू बी बाई ए. वी कैन से p इज इक्वल टू बी बाई ए. से डिवाइड कर लीजिएगा इसको. सो p इज इक्वल टू बी बाई ए. यहाँ पर p इज इक्वल टू सी बाई बी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p इज इक्वल टू डी बाई सी. सो तीनों से हम कॉमन कह सकते हैं कि b बाई ए इज इक्वल टू b बाई ए इज इक्वल टू, देखेगा यहाँ पर c बाई बी है, दिस p नहीं है, दिस इज, तो b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी, और इट इज कांस्टेंट. लेकिन अगर ऐसा है b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि a b c एंड d आर इन जीपी. अगर ये जीपी में होंगे, देखिएगा b बाई ए विल बी इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी, तो ए बी सी डी आर इन जीपी. एग्जाम्पल 24, इफ पी क्यू आर इन जीपी. अगर पी क्यू आर जीपी में है तो इससे हम कहेंगे, इससे पता पड़ता है कि क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर. सो पी क्यू आर इन जीपी मीन्स क्यू स्क्वायर इज पी आर, एंड द इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इजकल टू जीरो, एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इजकल टू जीरो. दे हैव कॉमन रूट, दोनों के रूट सेम है, कॉमन रूट है. सो दैट डी वाई पी ई वाई क्यू एफ वाई आर आर इन ए पी. सो इक्वेशन हमारी दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू आर प्लस आर इजकल टू जीरो. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. यहाँ पर b क्या है, b इज q और a इज p एंड c इज r. तो इन वैल्यू को रखने के बाद x आ जाता है माइनस टू क्यू, ओके, माइनस b. देखिएगा b कितना है, b इज टू क्यू, b इज टू क्यू. पुट b इक्वल टू टू क्यू, तो माइनस b माइनस टू क्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू क्यू को होल स्क्वायर हो जाता है. बी स्क्वायर इज विल बी टू क्यू होल स्क्वायर, इस विल बी फोर क्यू स्क्वायर. तो ये हमने फोर क्यू स्क्वायर लिखा माइनस फोर ए सी, फोर ए इज पी एंड सी इज आर, सो ये फोर आर पी हो गया डिवाइडेड बाई टू पी. अगर हम इसमें देखेगा क्योंकि ए पी क्यू आर इन जी पी, क्यू स्क्वायर इज पी आर, तो हम रख देते हैं इस वैल्यू को. सो एक्स आ जाता है हमारा माइनस टू क्यू प्लस माइनस अंडर रूट फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर को हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर. तो ये हमने रख दिया डिवाइडेड बाई टू पी. तो ये टर्म यानी ये आ गया एक्स टू माइनस टू क्यू, ये जीरो हो गया, प्लस माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू पी, यानी एक्स की दो वैल्यूज आ जाती है माइनस क्यू बाई पी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस क्यू बाई पी. सो रूट्स आर सेम. अब हमने, क्योंकि कॉमन रूट्स ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन यानी कि कॉमन रूट हैं, तो इस इक्वेशन को, ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. इस इक्वेशन को लिख लेते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इजकल टू जीरो. तो x की वैल्यू रखेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू बाई पी और स्क्वायर प्लस टू ई माइनस क्यू बाई पी, ओके, प्लस एफ इज जीरो. तो ये आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं डी क्यू स्क्वायर, ओके, डी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ये माइनस आ जाएगा टू ई क्यू बाई पी प्लस एफ इजकल टू जीरो. एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाता है पी स्क्वायर, तो इसको कह सकते हैं हम डी क्यू स्क्वायर माइनस टू ई पी क्यू आ जाएगा यहाँ पर, प्लस एफ, देखिएगा यहाँ आ जाएगा, हमने पी स्क्वायर लिया तो एफ पी स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट स्टेप में पी स्क्वायर जीरो के साथ मिलकर जीरो आ जाएगा. मीन्स फाइनली हम कह सकते हैं डी क्यू स्क्वायर माइनस टू ई पी क्यू प्लस एफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब हमने इस इक्वेशन को पी क्यू स्क्वायर से हम डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड दिस इक्वेशन मान लेते हैं इसको वन.
डिवाइड दिस इक्वेशन बाई पी क्यू स्क्वायर। सो ये इक्वेशन आ जाती है डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस 2e पी क्यू अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल होकर इसको लिख सकते हैं डी बाई पी माइनस 2 पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2e बाई क्यू माइनस 2e बाई क्यू प्लस एफ पी स्क्वायर अपॉन पी और क्यू स्क्वायर को हमने क्या रखना है पी आर, पुट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, सो पी आर इज इक्वल टू 0 अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज 0। सो यहाँ पर देखिए p इंटू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं 2e बाई क्यू को साइड चेंज कर लीजिएगा, हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट 2e बाई क्यू विल बी इक्वल टू डी बाई पी प्लस दिया जाता है यहां पर एफ वाई आर। तो आपको हमने बताया था कि अगर एक्स वाई जेड एपी में है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें 2 इंटू वाई क्या है हमारा ई वाई क्यू, एक्स क्या है हमारा डी वाई पी, जेड क्या है एफ वाई आर, तो हम इससे कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यानी एक्स क्या है हमारा डी वाई पी, दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। सो वी कैन से hence dy p e y q, so this will be x, this will be y, e y q and this will be z, so x y comma z क्या है f y r, these are in AP. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.